Okay, so in this pleasant morning, I, Kumar Roshan, your school training nodal coordinator of Mother Teresa Tiny Tots English School, welcomes you all, especially our principal ma'am, our director sir, our manager sir, and all the teaching and the training staff who all are present here. So today I invite you all to the in-house training of being presented by our TGT Anand Prakash sir. So he is going to take the meeting or the in-house training for today on the topic digital learning and management. So as we all know that our training is processing very smoothly and people are getting very much enthusiastic about our trainings. So hopefully you all are getting a lot of knowledge and a lot of information from all these trainings. So I also request you all to pay attention and also to listen to him, because he is not only a resource person, but today what topic he is going to deal with us, this topic is truly about the modern world and the modern times which we are facing today, that is digitalization. We all know that our country, our PM are also making people or encouraging people about digital learning and digital things. So from time onwards, all the things are changing into digital. So to show us what digital learning and management is and what are its effects, I invite our TGT IT teacher, our Anand Prakash sir, to come and start the meeting. So welcome Anand sir. Good morning all of you. Myself Anand Prakash, TGT IT, your resource person for today training on topic digital learning and management. So welcome our director sir, principal ma'am, manager sir, and STNC Dawson sir, and all teaching and academic staff of our school, Mother Teresa Tiny Tots English School. Now my topic is digital learning and management. डिजिटल लर्निंग एंड मैनेजमेंट को हम लोग सिंपल सा वर्ड में कह सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, जो पहले के जमाने में या फिर आज की चल रही है डिस्टेंस लर्निंग, और वो डिस्टेंस लर्निंग का ही स्वरूप है डिजिटल एजुकेशन या फिर डिजिटल लर्निंग कहते हैं हम लोग इसे। जब हम लोग डिजिटल लर्निंग का बात करते हैं, when we talk about digital learning, we imagine many devices like computer, projector, mobile phone, and different technology. But in digital learning, there are some basic elements. ये हम लोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर डिवाइसेस, लैपटॉप, many different इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में सोचते हैं जब हम लोग को डिजिटल लर्निंग के बारे में या फिर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। ये कोरोना पैंडेमिक के समय में हम लोग देखे होंगे कि एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो चुका था, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गया था, मोबाइल फोन पे, और बहुत सारे चैलेंजेस टीचर्स भी फेस किए, स्टूडेंट भी फेस किए और कर रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि हम लोग मॉडर्न टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस कर रहे हैं अपने आप को बूस्ट करने के लिए। तो जब हम लोग डिजिटल लर्निंग का बात करते हैं तो डिजिटल लर्निंग का बेसिक कुछ एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर सम बेसिक एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा डिजिटल लर्निंग में देयर आर सम बेसिक 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स का बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट हो जाती है टेक्नोलॉजी। फर्स्ट हो जाती है टेक्नोलॉजी, देन सेकंड का हम लोग बात करते हैं तो सेकंड होती है कंटेंट्स, और थर्ड होती है जिसको हम लोग इंस्ट्रक्टर भी कहें या फिर टीचर भी कहें।
technology. We know that by the help of technology, we able to deliver or access many of resources. By the help of technology, we able to deliver study material to our students. Second is contents. Contents means that it is digital contents. मुझे क्या करना है, क्या पढ़ाना है, क्या बतानी है, मीन्स दैट मे बी वो कंटेंट्स रहेंगे पीडीएफ में, या फिर वो कंटेंट्स रहेंगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो वो पीडीएफ में रहेगी या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रहेगी, या फिर वो विजुअल रहेगी, वीडियो में रहेगी, या फिर वो ऑडियो में रहेगी। बट हम लोग जैसा जानते हैं कि कंटेंट्स तो पीपीटी में भी होगी, पीडीएफ में भी होगी, बट वी अनेबल या फिर ड्यू टू सम रीजन हम वो डिलीवर कर सके हम लोग सामने तक। तो वो इंस्ट्रक्टर और टीचर कौन होंगे? तो वो हम सब में से ही कोई होंगे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो हमारे सर और भी सर हैं वो हो, जो टेक्नोलॉजी से अच्छे से परिचित है, टेक्नोलॉजी से वो एसेस कर पा रहे हैं, वो यूटिलाइज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का। तो हम सबको इंस्ट्रक्टर वो पर्सन होंगे, ऐसा नहीं 15, 20, 25, 30 मेंबर में से टोटल इंस्ट्रक्टर ही होंगे, नहीं, कोई 2, 4, 5 मेंबर ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी से अपडेट होते हैं, उनके पास एक्सेसिबिलिटी होती है, दे कैन हेल्प यू, वो हम सबको मदद कर सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन इज अ कंप्लीट सिस्टम, कि डिजिटल एजुकेशन आज के डेट में कंप्लीट सिस्टम है। वी कैन नॉट इमेजिन टुडे एजुकेशन विदाउट टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी का हम इमेजिन भी नहीं कर सकते आज के डेट में एजुकेशन सिस्टम को। या फिर डिजिटल एजुकेशन इज आवर फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम। आज का वर्तमान, आज कल का भविष्य, आज का वर्तमान निर्माण करता है। हम सभी जानते हैं कल जो हमारा आने वाला भविष्य है वो आज हम बना रहे हैं, बना सकते हैं। और हम सबको अवेयर रहना चाहिए और अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी, कंटेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर और टीचर जो सब एक दूसरे को कोऑपरेट करके एजुकेशन सिस्टम को और स्टूडेंट तक डिलीवर कर सके अपना जो भी उनका व्यू रहे, थॉट्स रहे। सिंपली हम कह सकते हैं कि डिजिटल एजुकेशन इज अ कंप्लीट सिस्टम इन विच these three elements, technology, contents, instructor, these three elements working together and providing all the required needs. ये तीन contents, ये तीन जो element, ये तीन elements मिलके जो भी नीड होगी, स्टूडेंट्स का नीड, स्कूल की नीड, टीचर की नीड्स, सब नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं ये तीन एलिमेंट्स, टेक्नोलॉजी, कंटेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर। अब यहां पे बात आती है व्हाई डिजिटल एजुकेशन, व्हाई डिजिटल एजुकेशन इज नेसेसरी। तो यहां पे मैं बात करूंगा टी एंड 3P। टी इज स्टैंड एज टाइम, टी मीन्स टाइम, टी का मतलब समय। कि डिजिटल एजुकेशन में जब हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली क्लास का बात करें तो एक टाइम फिक्स होती है कि 8 बजे से 3 बजे तक की टाइम उतने में बच्चे पढ़ते हैं और उनको भी पता रहता है कि मुझे स्कूल जाना है और उसके बाद कोचिंग वगैरह। लेकिन डिजिटल एजुकेशन में बच्चे बंधे हुए नहीं भी रह सकते हैं, उनके पास जब समय हो तब वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। सेकेंड, फर्स्ट टी एंड 3P। तो टी इज टाइम, और टाइम का बच्चा यूटिलाइज कर सके, हम लोग भी टाइम का यूटिलाइज करते हैं। अगर डिजिटली हम लोग डिजिटल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, डिजिटल ये 3 एलिमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड P इज पाथ। पाथ मीन्स पेडोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। पुराना सिस्टम हम लोग को अवॉइड करके कुछ नया क्रिएटिव बनना पड़ेगा, इनोवेटिव्स बनना पड़ेगी। मीन्स दैट दे हैव
टीचर से नहीं, वो अलग अलग है। कोई तेज बच्चा है तो वो ज्यादा तेजी से कैच करता है, तो अगर डिजिटली उन लोग को अगर मोटिवेट करते हैं हम लोग, तो वो डिजिटली जुड़ते हैं और अपना रास्ता वो बनाते हैं। थर्ड इज प्लेस। प्लेस मीन्स दैट वो बंधे हुए नहीं रहेंगे कि एजुकेशन आपको स्कूल में ही मिलेगी, एजुकेशन आप घर में ही रहे। बच्चा हॉलीडे में कहीं घूमने भी गया है, कहीं बाहर भी है, तो प्लेस कहीं पे भी वो अपना काम कर सकता है। एनीवेयर वो जर्नी में भी है तो जर्नी में भी वो अपना टाइम निकाल के पढ़ सकता है, होमवर्क कर सकते हैं। और हम आप भी कहीं पे भी है, अगर डिजिटली कनेक्टेड है, डिजिटली जुड़े हुए हैं, तो वर्क को हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं, बंधे हुए नहीं रहते हैं। एंड लास्ट इज पेस। डिजिटल लर्निंग पेस देती है, पेस प्रोवाइड करती है, गति प्रोवाइड करती है। जो जल्दी सीखने वाले बच्चे हैं वो तेजी से सीखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग भी डिजिटल लर्निंग से हम लोग भी कुछ तेजी से, जल्दी से, तेजी से कर सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव, ऑनलाइन नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दें। अब यहाँ पे बात आती है कि वैसे भी टीचर, वैसे भी शिक्षक जो डिजिटली इंटरेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड वाले में जो एलिमेंट दिया, इंस्ट्रक्टर और टीचर, वो हेल्प ले सकते हैं। एंड द पर्सन, द टीचर, वैसे टीचर जो डिजिटली जुड़े हुए हैं, दे कैन हेल्प देम टू कंप्लीट देयर ड्यूटी, देयर वर्क। डिजिटल एजुकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि डिजिटल एजुकेशन मींस दैट, इसको दूसरे वर्ड में हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन भी कहते हैं, कि डिस्टेंस एजुकेशन का ये दूसरा रूप है। नाउ आई वांट टू रोशन सर, प्लीज स्टार्ट आवर PowerPoint presentation. Yes. टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिजिटल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और टेक्नोलॉजी मींस दैट डिवाइसेस, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, डिफरेंट डिवाइसेस। टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट सर, टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस ग्रेट टीचर्स। टेक्नोलॉजी के बारे में कहा गया है कि टेक्नोलॉजी जो रिप्लेस नहीं कर सकता टीचर को, बट टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ ग्रेट टीचर कैन बी ट्रांसफॉर्मेशनल। कि टीचर के, जो भी टीचर के हाथ, टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकते टीचर को, बट टेक्नोलॉजी टीचर के हाथ में उनको ट्रांसफॉर्मेशनल बना सकते हैं, उनके आइडिया को आगे शेयर कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी we able to share our ideas, our thoughts. Next sir, with the advancement in technology there are many kinds, बहुत कुछ है यहाँ पे, मोबाइल एप्स, डिजिटल डिवाइसेस, एजुकेशनल डिवाइसेस that are entering in market, कि हमारे मार्केट में इंटर कर चुकी है। डिजिटल एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं, डिजिटल लर्निंग का, हम लोग के पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, जिसको हम लोग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है। उसमें हमारे पास डिफरेंट बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, नोट्स, डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट सर, व्हाट इज डिजिटल लर्निंग? डिजिटल लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ वेब। जैसे कह रहे हैं कि डिजिटल लर्निंग क्या है, तो वेब से, इंटरनेट से हम लोग को पढ़ने में, सीखने में मदद मिलती है। इन विच नॉलेज इज इम्पार्टेड टू ए स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग स्टूडेंट के पास नॉलेज को शेयर करते हैं। नेक्स्ट सर, फर्स्ट प्रीवियस टेक्नोलॉजी, हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो
या फिर टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम शेयर करें, या फिर अपने टेक्नोलॉजी को, अपने सिस्टम को, अपने आप को डेवलप करें, जो भी हमारा एजुकेशन में जो भी डेवलप करना है। यहाँ पे कुछ लर्निंग इंस्टीट्यूट आजकल यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को सीखने में, पढ़ने में, जैसे लार्ज प्रोजेक्टर, एलसीडी स्क्रीन, इंटरनेट कनेक्शन, अदर डिजिटल टूल्स सच एज मोबाइल फोन्स, डिफरेंट डिजिटल टूल्स, अलग अलग डिजिटल टूल्स हम लोग आज के डेट में यूज करते हैं। क्वेश्चन सर नेक्स्ट, डिजिटल लर्निंग क्यों जो आवश्यक है हमारे लिए? जैसा कि मैंने बताया, इट सेव्स आवर टाइम, इट नॉट डिपेंड आवर प्लेस कि मैं स्कूल में ही जाऊंगा मैं पढ़ूंगा, मैं कोई इंस्टीट्यूट में ही जाऊंगा तो पढ़ूंगा। डिजिटल लर्निंग आज के डेट में पैंडेमिक में हम लोगों ने देखा, हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में ये 2002-2003 के आसपास एलएमएस सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई किया गया था। बट टुडे हम लोग स्कूल में भी ये अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल लर्निंग सेव द टाइम ऑफ द एजुकेटर एज वेल एज स्टूडेंट्स। बाय द हेल्प ऑफ डिजिटल लर्निंग वी कैन सेव आवर टाइम एज वेल एज स्टूडेंट्स टाइम। सेकंड, helps the teacher to analyze the growth of all the students. टीचर को हेल्प करती है स्टूडेंट को ग्रोथ करने, एनालाइज उसका जो ग्रोथ है उसको एनालाइज करने के लिए। बट वी शुड टू गिव देम असेसमेंट, असेसमेंट मुझे देना पड़ेगा ऑनलाइन। अगर बच्चे को पढ़ाई करना है तो ऑनलाइन उन्हें एंगेज करनी है, ऑनलाइन उन्हें असेसमेंट देनी है करने के लिए, ऑनलाइन उनसे क्वेश्चन आंसर देनी है करने के लिए, ताकि वो एंगेज रहे और उसके कारण हम लोग उसका ग्रोथ को एनालाइज कर पाए। प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन द लर्निंग प्रोसेस। डिजिटल लर्निंग से ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड होती है, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। मोर एंगेजिंग देन कन्वेंशनल मेथड ऑफ लर्निंग, ये ज्यादा से ज्यादा एंगेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्कूल की बात करें, पहले के अभी टाइम आफ्टर इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक, बिफोर पेंडेमिक एंड आफ्टर पेंडेमिक अगर बात करें तो स्टूडेंट स्कूल में बेसिकली 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक अपने आप को बिजी रखते थे, व्यस्त रखते थे। लेकिन डिजिटल लर्निंग में हम लोग उनको असेसमेंट देके, अपना वीडियो ऑडियो अपलोड करके उसे एंगेज रख सकते हैं। नेक्स्ट सर, ऑनलाइन ट्यूटरिंग। टीचर ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं डिजिटली। ट्यूटर्स टीच अ स्टूडेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर एंड क्रिएट अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। ऑनलाइन ट्यूटरिंग में टीचर एक सेफ एनवायरनमेंट बनाते हैं। द सेकंड, इंस्टीट्यूशन आर कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशन टू गाइड द टीचर अबाउट डिजिटल टूल्स। और स्कूल भी कंडक्ट करवाती है, टीचर सबको ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग करवाती है कि ऑनलाइन टूल्स कैसे यूज करना है, डिजिटली कैसे अपने आप को कनेक्ट रखेंगे। और इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग हैज चेंज्ड बट द बेसिक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंपार्टिंग द नॉलेज रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट सर, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड ए स्पेस फॉर द स्टूडेंट टू लर्न एट देयर ओन स्पीड। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं डिजिटल लर्निंग में 1P एंड 3P का जिक्र करूंगा, एंड 4th P वाज पेस, चौथा P था पेस। मींस दैट डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड पेस टू द स्टूडेंट्स। डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड ए स्पेस फॉर द स्टूडेंट टू लर्न एट देयर ओन स्पीड। कोई कम समझते हैं, कोई स्टूडेंट ज्यादा समझते हैं, ज्यादा समझने वाले स्टूडेंट ज्यादा समझ सकते हैं। The online availability of tutorials video makes a process of learning easier for students. हम सभी को चाहिए कि अपना स्टडी मटेरियल, PDF, सिलेबस, टीचिंग एंड लर्निंग असेसमेंट बच्चे को प्रोवाइड करते रहें डिजिटली एंड फिजिकली। अगर पेंडेमिक के बाद जैसे देखें कि ये हम लोग क्लास ऑफलाइन चल रही है तो बच्चे को एंगेज रखें।
ताकि वो इंगेज रहे डिजिटली। कुछ वैसा क्वेश्चन दे बच्चे को कि वो इंटरनेट के हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट दे एबल टू फाइंड देयर आंसर। इंटरनेट के हेल्प से वो अपना आंसर को फाइंड कर सके, वो डिजिटली अपने आप में इंटरैक्ट रखे। थर्ड, a student can watch a particular video as many times as they want to understand the concepts। कि अगर आपने कंसेप्ट लोड किया है, वीडियो अपना बना के प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया, तो बच्चे के पास ये एबिलिटी रहती है कि वो मेनी टाइम्स देखे, अपने आप को बूस्ट करे, अपने आप को एंगेज रखे। क्वेश्चन से नेक्स्ट, अब वो डिजिटल कंटेंट्स, विजुअल एंड ग्राफिक्स, कि डिजिटल कंटेंट से जो कंटेंट्स रहेंगे वो विजुअल रहेंगे और ग्राफिक्स रहेंगे। और जैसा कि मैंने देखा कि ये 3 एलिमेंट्स जो है, 3 एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल लर्निंग, टेक्नोलॉजी, कंटेंट्स, इंस्ट्रक्टर। तो कंटेंट्स, वो कंटेंट्स विजुअल रहेंगे या फिर ग्राफिक्स रहेंगे। एंड ग्राफिक्स, digital visuals and graphics are used to explain concepts and theories। डिजिटल विजुअल्स, ग्राफिक्स यूज करना चाहिए हम लोग को थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, और जिसके कारण दिस मेक्स एनी बोरिंग कांसेप्ट इंटरेस्टिंग, और उसके कारण बच्चे सब बोरिंग कांसेप्ट को भी इंटरेस्टिंग तरीके से वो समझ सकते हैं। और मुझे याद आती है क्लास 9th में इंग्लिश में एक स्टोरी है, मैकेनिकल टीचर। और उस मैकेनिकल टीचर में मैंने पढ़ा कि फ्यूचर, आगे कल होने वाला क्या है, कैसा टीचर रहेगा, उसमें वो डिस्क्राइब है। और एक बच्चा जो कभी बुक नहीं देखे हुए रहता है और उसको एक बुक मिलती है और वो बहुत क्यूरियस हो जाता है कि ये बुक कैसे रहे होंगे, कैसा पढ़ता था उस टाइम में लोग। तो डिजिटल लर्निंग, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डिजिटल लर्निंग आ चुका है और बच्चे के पास बुक भी है। सो वी शुड नीड देम टू एंगेज ऑन बोथ टाइप ऑफ लर्निंग सिस्टम, कि बच्चा बुक से भी पढ़े, कुछ क्वेश्चन करे, और उनके पास ये क्यूरियोसिटी हो कि वो डिजिटली भी वीडियो, ग्राफिक्स जो भी हो उससे वो इंटरेक्ट होके उस क्वेश्चन, उस सवाल से अपने आप को जोड़ के और आगे वो देखे, वो खोजे कि इसका आंसर्स क्या होंगे, वो इंगेज रहे। और ये पार्ट ऑफ स्किल्स है हमारा। और ये आने अभी के समय जब हम लोग बात करते हैं तो 21st सेंचुरी में ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल लर्निंग, ये प्राइमरी, एक तरह से प्राइमरी गोल ही होना चाहिए टीचर्स का भी, बच्चे को भी, कि अपने आप को इंगेज रखें और डेली अपने आप को कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करें। और हम टीचर को भी चाहिए कि बच्चे को इंगेज रखें, बच्चे को मोटिवेट करें, बच्चे का क्वालिटी, बच्चे की योग्यता को जांचे, बच्चे की योग्यता को प्रोत्साहन, बच्चे की योग्यता को देखने के बाद उसे प्रोत्साहित करें कि कैसे अपने आप को आगे, आपके सामने आपका भविष्य कैसा होने वाला है। You can choose any technical device depending on comfort and budget। ऐसा नहीं है कि बच्चा ये सोचे कि हम एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग लैपटॉप से ही करेंगे, मोबाइल फोन से ही करेंगे, तो एक बड़ा सा, एक ज्यादा कॉस्टली मोबाइल फोन से ही हम लोग स्टडी करें। नहीं, उन लोग को, बच्चे को समझाना पड़ेगा हम सभी को कि वो कोई भी टेक्निकल डिवाइस रहेगी वो कंफर्ट बजट में होनी चाहिए, कंफर्ट बजट में। और हम टीचर को भी चाहिए कि बच्चे ऐसा उनको प्लेटफॉर्म बताए जो इजीली एक्सेसिबल रहे उनके लिए। सेकंड सर, कह सकते हैं कि एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन एट होम, कि डिजिटल एजुकेशन टीचर, हम सभी को प्रॉब्लम होती है, इंटरनेट नहीं रहती है, कनेक्टिविटी नहीं रहती है। सेकंड इज देयरफॉर अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस एंड thus hampers their overall growth। कि अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, कोई टीचर के पास इंटरनेट नहीं है, अवेलेबिलिटी है, तो हम सभी को क्या चाहिए कि इंटरनेट शेयर करें, उन्हें वो सर्विस दे, उन्हें वो सुविधा दे जिसके कारण वो अपने आप को इंटरेक्ट कर सके डिजिटल लर्निंग से। ऐसा भी होते हैं कि दे अनेबल टू यूज
टीचर को कि उनके पास क्वालिटी है, उनके पास एबिलिटी है, बट दे अनेबल टू डिलीवर देयर थॉट्स, देयर ओपिनियन। और एज ए इंस्ट्रक्टर जो भी हमारे टीचर, जो भी हमारे आसपास के जो भी कोई है, उन्हें हेल्प करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए उन्हें कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए, अपने आप को जोड़ सके। और उसके कारण हैम्पर्स देयर ओवरऑल ग्रोथ, कि अगर वो जुड़ते हैं कि उन्हें समस्या हो रही है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको जोड़ने के बाद उनका पूरा विकास भी संभव है। सेकेंड सॉल्यूशन से नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंटेंट्स जो प्रिपरेशन रहेगा या किसी भी चीज का, तो प्रिपरेशन एंड रिस्पांसिबिलिटीज कि ट्रेनिंग सेशन हेल्प द टीचर टू लर्न न्यू डिजिटल टूल्स। अगर मान लीजिए कि टीचर डिजिटल लर्निंग से अवेयर नहीं है या फिर उनसे वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं है, तो उनके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन चलाया जाता है, चल रही है, हमारे भी स्कूल में चल रही है, सीबीएसई की भी चल रही है। तो ट्रेनिंग सेशन हेल्प द टीचर टू लर्न न्यू डिजिटल टूल्स। बहुत सारे डिजिटल टूल्स आ चुके हैं मार्केट में, बहुत सारे डिजिटल टूल्स, जैसा कि मैं शुरू में ही बताया, LMS इज स्टैंडर्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये LMS का ये एलिमेंट एक तरह से कह दीजिए टेक्नोलॉजी, कंटेंट्स, इंस्ट्रक्टर, टीचर, ये सब एलिमेंट्स हैं। However, it sometimes becomes challenging to impart knowledge in using digital technology. हम सभी को भी लगता है, चैलेंज लगते रहता है कि कैसे अपने आप को रजिस्टर करें, कैसे अपने आप को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ के रखें। तो ट्रेनिंग सेशन होती है, अपने आप को इंटरेक्ट रखें, अपने आप को हार्ड वर्किंग रखें, जुड़े रहें उस चीज से जोड़ने का, उससे डिजिटली अपने आप को जोड़ने की कोशिश करके रखें। और however, sometimes it becomes challenging to impart knowledge यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। और इसको आप लोग का इंस्ट्रक्टर, जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे, जो भी टीचर होंगे, जो डिजिटल ट्रेनिंग, डिजिटल लर्निंग या फिर कह दे कि इंटरनेट या फिर वेब एप्लीकेशन से जो अवेयर है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। कभी कभी नेटवर्क इशू भी होती है, बैकवर्ड एरियाज भी है, वीक कनेक्शन भी है, ऑडियो विजुअल प्रॉब्लम भी है। ये सब चैलेंज हम लोग फेस करते हैं डिजिटल लर्निंग में, लेकिन इसका भी हम लोग को क्या चाहिए, तो समाधान चाहिए कि कैसे वो ना हो कि ऑडियो विजुअल प्रॉब्लम है तो उन्हें आप स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें, अपना वीडियो अपलोड करके उन्हें प्रोवाइड करें, आप वीडियो बना के उन्हें अपलोड कर दें। तो सर नेक्स्ट, we should to need to up to date ourselves with new innovations। हम लोग को जो भी नया इनोवेशंस है उससे अपने आप को अप टू डेट रखने की जरूरत है। To teach through digital technology can be an expensive affairs as software and hardware keep updating day by day। Digital devices need updation and these are expensive software and hardware keep to up to date day by day। Therefore, it is not feasible for everyone to adapt a new method smoothly। Poverty, stickers area are affected the most। ये सब डिजिटल लर्निंग का कुछ समस्याएं जो हम लोग फेस करते हैं। एक्सपेंसिव है, फिर नॉट फेसिएबल है, लेकिन इंस्ट्रक्टर, कंटेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, दिस कैन हेल्प यू इन डिजिटल लर्निंग। प्रोसेसर नेक्स्ट, कह सकते हैं कि डिजिटल लर्निंग which is breakable the status of traditional learning system method can contribute to lot of development to society। ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, एक परंपरा चली आ रही थी, अब डिजिटल लर्निंग उस परंपरा को हटा रही है और हमारी सोसाइटी को डेवलप कर रही है और कर सकती है। डिजिटल लर्निंग के कंट्रीब्यूशन के कारण हम कह सकते हैं कि सोसाइटी हम लोग की डेवलप हो सकती है। इट कैन अल्टीमेट चेंज द न्यूनेस in education, the upgrade which was long overdue। लंबा थोड़ा समय लगेगा डिजिटल लर्निंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी को पूरे आने में फेस कर रहे हैं हम लोग। बट सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर,
बैकवर्ड एरियाज है, पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी है, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि डिजिटल लर्निंग इज इनवेंटेबल। तो उनको डिजिटल लर्निंग को हम लोग अवॉइड अगर करें तो अनअवॉइडेबल है, अवॉइड नहीं किया जा सकता आज के डेट में डिजिटल लर्निंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म को। ऑल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, टिकट, ऑल आर शिफ्टेड टुवर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ वो शिफ्ट हो रही है। बैंकिंग सिस्टम हो गई, डिफरेंट हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ग्लोबली सारे सिस्टम अपने आप को डिजिटली शिफ्ट कर रहे हैं, डिजिटली टुवर्ड्स डिजिटल। देयर अ वीडियो, और मैं चाहूंगा कि रोशन सर वो वीडियो प्ले करें। कि ये मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एलएमएस। तो ये एलएमएस होती क्या है, एलएमएस के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। Educational courses and training programs. Also included are student registration, curriculum management, skill and competency management, and reporting features. Most modern LMS packages are web-based. Learning Management System (LMS). LMSs are focused on online learning delivery but support a range of uses, acting as a platform for fully online courses as well as several hybrid forms such as blended learning and flipped classrooms. LMSs can be complemented by other learning technologies such as a training management system to manage instructor-led training or a learning record store to store and track learning data. For example, Ms. Kensington is deciding between Moodle, Blackboard, Desire to Learn, and Schoology for managing her teachers' curriculum materials and students' assessments. Open source LMS meaning. Open source LMS is flexible and can be developed keeping in mind specific needs of the training providing organization. It is free to use without any additional cost like hardware cost. Open source learning management system is of great significance to universities, schools, and other educational institutions. The top 15 open source LMSs: Moodle, ATutor, Eliadami, Forma LMS, Dokios, Ilias, OpenNo, OLAT. Canvas, Camilo, Clavellin, eFront, LAMS, LONCAPA, Sakai, SWOT. Open source LMS at home learning and classroom learning. Can you memorize what is Learning Management System, LMS? Learning Management System (LMS), a piece of software that manages, analyzes, and runs educational courses and training programs. Also included are student registration, curriculum management, skill and competency management, and reporting features. Most modern LMS packages are web-based. For inspiration, men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education. Bertrand Russell. यहाँ पे हम लोगों ने जैसा कि देखा LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वो एक सिस्टम है, कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है या फिर हम लोगों जैसा ही पर्सन है जो हर एक ऑनलाइन एक्टिविटी को शो करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी क्रिएट करते हैं या
प्लेटफॉर्म से कैसे अपने आप को अप टू डेट रखें, कैसे अपने आप को इंटरेक्ट रखें। और एलएमएस बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे मॉडल हो गए, फिर एनएफसी हो गए। ये सब एक प्लेटफॉर्म है जो अपने आप को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से अपने आप को जोड़ के रखते हैं। और इसमें डिफरेंट फीडबैक, आपका कन्वर्सेशन, आपका स्ट्रेटेजी, टीचिंग स्ट्रेटेजी, आपका मेथड, टीचिंग मेथड, आपका क्वालिटी, वो सब एलएमएस के द्वारा हम लोग एनालाइज करते हैं और अपने आप को उससे जोड़ के भी रख सकते हैं। अब यहां पे ये भी कह सकते हैं कि एलएमएस वेब बेस्ड पैकेज है। और ये वेब बेस्ड पैकेज, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग कहीं से परचेज ही करें। आप सेल्फ भी अपने आप को जोड़ के वेब से और डिलीवर कर सकते हैं। और आज के विषय में, ये डिजिटल लर्निंग के विषय में, मैं अपने शिक्षक बंधु से आग्रह करूंगा कि वो अगर कोई विषय या फिर कुछ विषय वस्तु रखना चाहते हैं तो आकर रखें। हम लोग आज के डेट में डिजिटल लर्निंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। अब बहुत सारे समस्याएं होते हैं। हमारे मिश्रा सर थोड़ा सा Good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून। Respected Director Sir, Principal Ma'am, teachers, and all the students. Today we are here to assemble to a special topic, the digital learning and management. We have to send the most special that from either the Anand sir or Rasan sir. But I want to make one thing. The need of our is to build the bridge among the digital learning and conventional learning. We are getting, a student is going to be more to up to date. But what the drawback is here, students forget the own traditions. If anyone say, write a essay, they are unable to write it. Write an application, they don't know how to write it. The need of power, if we want to make a sound society, better society, productive society, first of all we have to establish the link bridge between the conventional education and the modern education, that is the digital. It is a need of power. In the pandemic we required to fulfill the gap created by the conventional education. But it is also to use to, we must move forward, but never our back footprint. Because this back footprint is also essential, which decorates our society, our culture, our nation, our state. Being we are moving to a globally environment, globalization, that is a sound way to create a system that is establish the friendly, cordial relation among the traditionally education and that is the digital education. Okay, we may provide this type of, but one thing is there, finally, the labor has done by the student. What we are getting in the modern technology,
We are getting the latest gadget, latest equipment, latest style, but it makes one of the biggest demerit of make the lazy to the student. And it is not the throughout idea of this education, modern education. It means student must be more laborious. We use this technology. That is why someone said, okay, if we are moving to the easy life, it will be unable to fulfill the demand, need, desire of the present or the coming time. That's all. Now I would like to our respected principal ma'am to give their opinions on today's topic digital learning and management. As we are continuing in the session, just 1 minute before, Suraj Kant Mishra sir, PGT Science, he expressed his views and lots of things we already discussed with TGT IT Sir Anand Prakash sir. So now as a whole, I want to make a special emphasis on the situation heralds. समय की मांग क्या है? What is the demand of time? That should be focused. As a student also, as a teacher also, as a management also, as a parent also. The students, the teachers, the parents coming from different economical background, they are suffering from many challenges in real life. So, many tools, many learning tools, many teaching learning methods we know, we discuss, we enhance the new technology also. So, our topic is digital learning and management system. So, this is the time that in our school we have to motivate each one to go through the demand of situation. Mean you have to make a beautiful mingle mechanism. You have to develop such a mechanism that if it is suitable to go through the school and to attend offline class, you should go. Suppose that it is pandemic, it is holiday, and you have to complete lots of courses in fast, in advance. You can take help on that time through the learning management system, through your mobile, through your computer, through electronic media, you can learn. If it is time, if you have enough time to spend, you can use your school or other library. You can spend lots of time to earn lots of knowledge regarding a particular subject as a student also, as a teacher also, as a principal and as a sincere parents also. So we have to make a mechanism as a center of individual that what I have to do. If it is more beneficial to go through the e-library, if it is more easy to purchase a book, I know I have what type of money and what type of situations I am facing like a student, like a teacher, like a parents. So we have to develop such a good mechanism using all the methods, offline, online, e-book, e-library, and attending offline classes, collecting lots of books like as usually previously we are doing. In our students' life, such type of learning management systems are not so developed. On that time, we are very much focused about collecting good books, to purchase books, to reading books offline. You will go through the print media mostly. We will go through the classes mostly. We will attend several classes to collect the knowledge. We will go to the teacher and learn from them.
like we are learning from sense of organs also. Teaching learning should be visualized and focused through listen, through listen, to note it down, to speak it down, to appear in the examination, go through the assessment. But here some facilities are added. Here offline classes are also going, the libraries are available, the teachers are available in the school also, the coaching tuitions are also available, learning tools digitally are also available. So nowadays it is very fruitful. Suppose that our student is quite unable to purchase a costly book, he should go through the e-book, e-learning, e-CBSE, everything is digitally alert. If it is very difficult to go through the library every day, if it is not possible to purchase it, to go through special time, if you have a syllabus pressure, go through the e-learning. All library is e-library. Any book, any library's book, any biography, any methodology will be available. So this is the time of advanced learning. डिजिटल एजुकेशन के फर्स्ट एपिसोड में हमारा ये प्रयास है पहली बार. So this is the very good opportunity to go through the demand of time. This I have to focus. So digital learning is the part of our education. We don't have to focus fully on digital, fully on traditional education. We have to make a proper balance. If we are sincere citizens, sincere students, sincere parents, sincere teacher, according to your ability, according to your economical situation, you have to make a proper balance. That the motto is, we have to be globally alert and digitally transparent. So we will make or create a sincere and very much aware students in near future, under the supervision of school teachers as well as their sincere parents. In this way, I want to conclude my topic, and I will request Anand sir to continue the session. डिजिटल लर्निंग, जैसा कि हम लोगों ने देखा, समझा कि डिजिटल लर्निंग आज के डेट में डिस्टेंस लर्निंग का ट्रांसफॉर्मेशन है. डिस्टेंस लर्निंग ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स डिजिटल लर्निंग. और जैसा कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंटेशन में कुछ कि डिजिटल लर्निंग बेसिकली है क्या, जिसे हम लोग ऑनलाइन लर्निंग भी कहते हैं, और कह दे तो वोकेशनल ये डिस्टेंस एजुकेशन हम अब डिजिटल एजुकेशन की ओर शिफ्ट कर रही है. सर नीचे नेक्स्ट पेज. यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन हैज बीन कंटिन्यू टू ग्रो, और ये बढ़ते जा रही है दिन ब दिन. और 2002 के आसपास बच्चे लोग के एजुकेशन में ये डिजिटल एजुकेशन को इम्प्लाई कर दिया गया था. और आज के डेट में कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण डिजिटल लर्निंग का डिमांड बहुत बढ़ चुका है. सो रोल ऑफ फैकल्टी इन द वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट नीड टू बी फोकस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस. जो फैकल्टी है, जो टीचिंग स्टाफ है, जो इंस्ट्रक्टर है, उनको चाहिए कि बेस्ट प्रैक्टिस बच्चे लोगों को प्रोवाइड करें, एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाए. और आज का ये वेबिनार का मेनली गोल ये है कि शेयर बेस्ट प्रैक्टिस टिप्स एंड पियर्स ऑफ विजडम सो फॉर फैकल्टी टीचिंग ऑनलाइन. जो भी ऑनलाइन फैकल्टी है जो पढ़ा रहे हैं, वो अपना पावर को कन्वे करें ऑनलाइन टीचिंग के दौरान. Inherent features and functionality of the learning management platform and best practice. वो अपना बेस्ट प्रैक्टिस वहां पे दे. कुछ मैथ्स है, कहा जाता है नीचे सर सेकेंड कि ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर हैज टू बी एन एक्सपर्ट. कि एक्सपर्ट होने की जरूरत है टेक्नोलॉजी में, डिलीवर क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन. उन्हें टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होने की जरूरत है, लेकिन हम लोग शुरुआत में ही देख चुके हैं और बता चुके हैं कि 3 एलिमेंट्स जो है, ये 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है. और ये इंस्ट्रक्टर और टीचर है, वो हम आप में से कोई भी हो सकते हैं जो हेल्प कर सकते हैं रिसोर्स पर्सन को. ऑनलाइन कोर्सेज आर इंफीरियर ऑन कैंपस कोर्सेज. कहते हैं ऑनलाइन कोर्सेज जो इंफीरियर है वो अधूरा होती है, बहुत दिक्कत होती है ऑन कैंपस कोर्सेज से. ऑनलाइन टीचिंग इज मेयरली जस्ट लेक्चरिंग ऑन जूम. आज के डेट में देखा जा रहा है कि हम ऑनलाइन में जूम यूज करते हैं. ऊपर ही सर
इंस्ट्रक्टर एंड देयर क्लासमेट। ऑनलाइन स्टूडेंट जब जुड़े हुए रहते हैं वो दूर भी महसूस करते हैं कि मेरा क्लासमेट जो है वो हमसे दूर है। तो हम सभी को चाहिए कि इंटरेक्टिव बनाए और चैट बॉक्स, चैट, वीडियो, वॉइस ये सब इंटरेक्ट करते हैं बच्चे से एक दूसरे से। तो हम सबको चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन, ड्यूरिंग ऑनलाइन एजुकेशन, ऑन डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग कि कुछ हम लोग अपने तरफ से बच्चे को बूस्टअप करें ताकि और उनसे क्वेश्चन राइज करें। अब वो ऑनलाइन फैकल्टी है उनका 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। कुछ प्रॉब्लम जो होती है उसके बेसिस पे पैडागॉजिकल, सोशल, मैनेजरियल एंड टेक्निकल। पैडागॉजिकल जो है टीचिंग एंड एजुकेटिंग जो पढ़ाएंगे, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग वर्सेस ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्टर कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्टर जो आते हैं इंस्ट्रक्टर और यहाँ पे पैडागॉजिकल वो रहेंगे फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग कि कैसे पढ़ना है, कैसे स्टडी मटेरियल देना है और वो इंस्ट्रक्टर ही रहेंगे। सोशल फैकल्टी प्रेजेंस एंड एंगेजमेंट, स्टूडेंट एंगेजमेंट, क्रिएटिंग सेंस ऑफ कम्युनिटी। फैकल्टी का प्रेजेंस होना जरूरी रहता है। एंगेजमेंट बच्चे को एंगेज करके रखे, स्टूडेंट को एंगेज करके रखे। और एंगेजमेंट में ऐसा भी है कि बच्चे को हम कुछ पूछना चाह रहे हैं तो फर्स्ट हम लोग को चाहिए उसका नाम लेके पुकारे या नाम लेके बुलाए। अब ऐसे ऑनलाइन अगर पढ़ा रहे हैं बच्चे से पूछते कि समझ में आया तो वो बच्चा कंफ्यूज होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं सर। ऐसा मैं भी प्रॉब्लम फेस करता हूँ। तो आप पे कोशिश रहना चाहिए हम सभी का कि बच्चे का नाम लेकर ही पुकारे, उससे बच्चे भी इंटरेक्ट हो पाते हैं। और मैनेजरियल जो रोल प्ले करते हैं उनको कोर्स, डिसीजन और एक्सपेक्टेशन तीनों का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे को कोर्स भी चले समय से, डिसीजन मेकिंग की डिसीजन भी ले सके। कि क्या ऐसा भी होता है कि बच्चे लोग कहते हैं कि मैं पिछला क्लास नहीं किया सर, मुझे फिर से क्लास एक बार हो सकता है क्या प्रीवियस क्लास। तो मैनेजरियल रोल में जो कोई भी उन्हें चाहिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें, वीडियो फिर से प्रोवाइड कर दें। और टेक्निकल भी फैमिलियर होना जरूरी है कि फैमिलियरिटी विद द लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म सच एज ब्लैकबोर्ड और Canvas रिसोर्सेज एट हैंड टू रिसॉल्व टेक्निकल इश्यूज। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पेडागॉजिकल रोल क्या होना चाहिए, क्या होता है ऑनलाइन फैकल्टी का, क्या होना चाहिए टीचिंग एंड एजुकेटिंग कि व्हाट यू कंसीडर टू बी एसेंशियल लर्निंग कंपोनेंट्स कि क्या जरूरी है पढ़ने के लिए। स्टूडेंट एसेस कि बच्चा क्या एसेस कर पा रहा है, कोर्स का सिलेबस, कोर्सेज ओवरव्यू उन्हें पता होना चाहिए कि मेरा कोर्सेज क्या है, मुझे पढ़नी क्या है। एंड कोर्स लेवल ऑब्जेक्टिव कि कोर्स किस बेस पे आपने बनाया, कैसे बनाया, क्या आपका स्ट्रेटेजी था। अलाइन लर्निंग एक्टिविटीज विद वीकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू कोर्स लेवल ऑब्जेक्टिव। अलाइन लर्निंग एक्टिविटीज बच्चे सबका एक्टिविटीज होते हैं वीकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कुछ कोर्सेज का जो भी चैप्टर आप पढ़ाए उससे रिलेटेड असेसमेंट दे बच्चे को इंकरेज करें पढ़ने की ओर। अब बहुत ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन कोर्सेज में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनका नाम पता नहीं होता, वो नाम ये भी पता चलता है कि नाम भी दूसरा वो इंटर किए हुए हैं। तो चाहिए हम सबको कि बच्चे को अवेयर करें कि वो ईमेल जिस ईमेल बनाए हुए मोबाइल फोन में उन्हें पता नहीं है कि मैं जूम मीटिंग में या फिर गूगल मीट में या फिर जहां भी है कि नाम अपना मेरा जो नाम है वो नाम मैं इंटर करूं। ऑनलाइन पेडागॉजी लार्जली एम्फेसिस एक्टिव learning student centered methodologies kids 2014 discussion board critical thinking and activities application for material। डिस्कशन बोर्ड हम सभी के पास होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटीज जैसे केस स्टडीज। हम लोग केस स्टडीज अभी अपने सिलेबस में अपने कोर्सेज में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जब देखेंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस केस स्टडीज फोकस करते हैं मेनली केस स्टडीज पे। रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी और रियल टाइम क्वेश्चन भी होनी चाहिए बच्चे से कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स एक्चुअली में है क्या। स्टोरी टेलिंग होना चाहिए कि कैसे आप कह रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ असेसमेंट देना चाहूंगा और
is an online class. The same as self-paced क्लास. क्या ऑनलाइन क्लास सेम है सेल्फ बेस्ड क्लास से? सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम डू आई have to spend online. Do I have to log onto class at a particular time? Fourth, That is going to repeat twice time, answer. The same question should be repeated twice time. sixth question. You should repeat once again all the questions. Taking the class online easier fifth is what यहाँ पे कुछ असेसमेंट है. इज एन ऑनलाइन क्लास द सेम एज सेल्फ बेस्ड क्लास? सेकेंड, हाउ मच टाइम डू आई हैव टू स्पेंड ऑनलाइन? कितना समय हमें ऑनलाइन में बिताना चाहिए? सेम टीचर और एज ए स्टूडेंट दोनों के लिए ये जरूरी है कितना समय बिताना चाहिए? टेक्नोलॉजी इज गुड एज वेल एज टेक्नोलॉजी कैन हार्म अस आल्सो टू आल्सो. और जैसा कि डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल लर्निंग से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें ये भी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना चाहिए, प्राइवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए. बिकॉज इंटरनेट पे मेनी थ्रेट्स, ऐसा बहुत सारे थ्रेट्स हैं जो हमारे डेटा को, ड्यू टू दैट वी लॉस आवर डेटा, हम अपने डेटा को लॉस कर सकते हैं, लॉस हो जाता है. थर्ड, डू आई हैव टू लॉग ऑन टू क्लास एट ए पर्टिकुलर टाइम? क्या एक पर्टिकुलर समय पे ही हमें क्लास में लॉग ऑन करना है? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ऑनलाइन क्लास में क्लासेस का टाइम कोई फिक्स नहीं हो सकता है. स्टडी मटेरियल बच्चे जब चाहे, कि यहाँ पे तो देखा ही था हम लोगों ने कि टाइम से बंधे हुए नहीं थे क्लासेस का टाइम. इज टेकिंग ए क्लास ऑनलाइन इजियर देन ए रेगुलर क्लास? क्या ऑनलाइन क्लास इजियर है रेगुलर क्लास से? अब व्हाट इंटरनेट स्किल वुड बी हेल्प इन एन ऑनलाइन क्लास? कि क्या इंटरनेट स्किल की हम सबको जरूरत पड़ेगी ऑनलाइन क्लासेस में? और जैसे कि शुरुआत में ही देखे थे LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम entirely help us to taking online class, online digital learning and different.
इंडिया में अगर एजुकेशन सिस्टम का बात करें तो इंडिया में डिजिटल लर्निंग अभी पेस में आ रही है, बहुत अभी धीरे धीरे पेस आने में टाइम लगेगी। बट डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ये डिजिटल लर्निंग को अपना लिया गया और मेनली क्या होती है केस स्टडीज। हम सबको चाहिए कि ऑनलाइन अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, डिजिटल लर्निंग से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा और वो इंटरेक्ट हो सके डिजिटली और एज वेल एज हम सब से भी। डिजिटल लर्निंग में हम लोग को सबसे फर्स्ट होना चाहिए कि एक एक्सपेक्टेशन जो होता है वो राइट होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, बच्चे को एम्बिशन रहना चाहिए, कम्युनिकेशन भी हम सबका अच्छा होना चाहिए, पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, रेगुलर क्लासेस भी होनी चाहिए कि अगर पढ़ा रहे हैं आप तो आपका क्लासेस ऑनलाइन, अगर इंटरेक्ट है आप बच्चे से डिजिटली इंटरेक्ट है तो आपका क्लासेस भी रेगुलर होनी चाहिए, प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, आप अच्छे से व्याख्या कर सके, बच्चे को समझा सके। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 10 टॉपिक पढ़ाएं। ऑनलाइन क्लासेस में एक टॉपिक भी अगर बच्चे को आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो समझता है कि ऑनलाइन का उनको इंपॉर्टेंस पता चलती है। करेक्शन, एग्जामिनेशन, इवोल्यूशन एंड फेलिसिटेशन, ये तो बात की बात है। फर्स्ट आपका एम्बिशन, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड करेक्शन, ये बेसिकली ये 5 रहेगी। तो देन एग्जामिनेशन, इवोल्यूशन एंड फैसिलिटेशन अपने आप हो जाएगी। तो फर्स्ट राइट एक्सपेक्टेशन हम लोग को सेट करना है। राइट एक्सपेक्टेशन में हम लोग को देखे ही थे कि एम्बिशन, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, करेक्शन, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन एंड फैसिलिटेशन। एंड सेकंड इज फोस्टर रिलेशनशिप। आपको बच्चे के साथ रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा, ना कि आप बॉस बने। बच्चे से आपको रिलेशनशिप बना के उसका क्वेरी, उसका क्वेश्चन और आपको रिजोल्यूशन देनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बच्चे का क्वेरी समझना पड़ेगा कि बच्चे ऑनलाइन में क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, या फिर वैसे भी आप नॉर्मली क्लासरूम में भी क्लासेस ले रहे हैं तो आपको क्वेरी सुननी पड़ेगी कि बच्चे क्या पूछ रहे हैं। वो डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आज के डेट में डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म हेल्प कर सकती है उसको अपने क्वेरी और जो भी क्यूरियोसिटी है उसको वो शांत कर सकता है, जो भी जिज्ञासा है। कुछ ग्रुप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी दे, ग्रुप में भी प्रोजेक्ट दे, इंडिविजुअल भी प्रोजेक्ट दे बच्चों को। आप विजिबल रहे, अवेलेबल रहे और फ्लेक्सिबल रहे। ऐसा नहीं है कि नया कोलैबोरेशन हो गया, नया ऑडियो टूल्स, वीडियो टूल्स, कुछ विजुअल टूल्स आपको ऐड करनी पड़ेगी। इनकरेज कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन। देन बच्चे से आपको क्वेश्चन पूछते रहनी है। आस्क क्वेश्चन टू कीप देम एंगेज्ड। और आज का मीटिंग डिजिटल लर्निंग एंड मैनेजमेंट पे था और मैं आनंद प्रकाश, TGT IT 402 फैकल्टी। आज का क्लास अपना मैं समाप्त करने जा रहा हूं।